لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے ان عازمین پر جو آج میدان عرفات میں اپنے رب کے حضور پیش ہیں۔ ہر طرف روح پرور جو مناظر ہیں وہ ہر مسلمان کی دلی آرزو ہیں کہ وہ بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور حج کی سعادت حاصل کریں۔ ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ دنیا بھر سے آئے مسلمان میدان عرفات میں خطبہ حج سنیں گے۔ حج کے مشکل ترین مرحلے کے دوران صبر سے لے کر سر تسلیم خم کرنے کے عمل تک انسان کی روح کو جو سکون ملتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حج مسلمانوں کو اپنے گناہوں کو مٹانے اور اللہ تعالیٰ کے حضور نئے سرے سے آغاز کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میدان عرفات میں بھائی چارے کا درس دیا جاتا ہے، اتحاد اور مساوات کا پیغام دیا جاتا ہے۔ حج ایک خاص اور منفرد عبادت ہے، لیکن اس میں اسلام کی اصل بنیاد توحید کی طرف خصوصی توجہ اور شرک سے اجتناب کی بار بار تلقین کی جاتی ہے۔ دوران حج عازمین احرام پہنتے ہیں جو حج کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ حج کے دوران احرام امن، مساوات، عاجزی پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ ناظرین، حج ایک عظیم عبادت ہے جو گناہوں کی معافی اور توبہ کا ایک زبردست موقع فراہم کرتی ہے۔ حج کے دوران مسلمان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کرتے ہیں۔ آج یوم عرفہ ہے، عظیم ترین دن ہے۔ آج کے دن عبادات کی قبولیت کا دن ہے۔ عازمین اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں، تلبیہ ان کی زبان پر ہے۔ روح پرور مناظر اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں ہر زبان پر استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، نگاہیں آسمان پر ہیں اور ہر شخص ہی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی، اہمیت اور فضیلت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب، جو اس وقت خود بھی میدان عرفات میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ایک تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ آج کے روز جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، آج کے روز قبولیت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت اس وقت ہو رہی ہے، آپ اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں، کیا سمع ہے وہاں پر اور حجاج اکرام میدان عرفات میں کتنی دیر یہاں پر قیام کریں گے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، تفصیل سے روشنی ڈالیے مفتی صاحب۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 21 اور مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر دور فاصلے پر میدان عرفات کے اندر اس وقت لاکھوں فرزندان توحید اہم ترین فریضہ حج کا سب سے اہم رکن اعظم عرفہ اسٹے یعنی وقوف عرفہ کے لیے یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ اس میدان عرفات کی ایک تو غیر معمولی فضیلت ہے اور عرفہ کی سب سے زیادہ حج کے اندر اہمیت ہے، اور پھر ایک اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے۔ اس کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ تو اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ترین جملے میں یہ بات ارشاد فرمائی، الحج عرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے، یعنی وقوف عرفہ کا نام ہے۔ وقوف عرفہ، عرفہ کے اندر آج کے دن زوال کے ٹائم سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت گزارنا اور عرفات کے میدان میں سٹے کرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ آج کے دن عرفہ کے میدان میں اللہ رب العزت اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کسی اور دن میں لوگوں کی اتنی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مسلم کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ لاکھوں بے شمار بڑی تعداد میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی بخشش کا فیصلہ اور اعلان فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت سے فخر کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سارے حجاج کیا لینے کے لیے اور کس چاہت کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ یقیناً یہی جواب ملتا ہے کہ یہ بخشش کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ حج کا مقصود اصلی بھی یہی کہ اللہ رب العزت ساری زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، کبیرہ گناہوں کی بخشش بھی حج کے ذریعے سے ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تو اس کی غیر معمولی فضیلت ہے۔ جہاں تک عرفہ کی غیر معمولی اہمیت اور فضیلت کے بعد اس کی تاریخی حیثیت کا تعلق ہے تو یہ میدان عرفات
अंबियाए कराम जहाँ आया करते थे, यहाँ जबल रहमत है। आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जहाँ तौबा कबूल हुई, इसी जबल रहमत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ फरमाया था। यानी ये जो रहमत की पहाड़ी, जबल रहमत, पहाड़ रहमत है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वकूफ फरमाया, और 1 लाख से ज्यादा कम व बेश सहाबे कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ हज फरमाया। और ये आयत भी इसी मैदान अरफात के अंदर उतरी थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम मदीना। इस आयत कुरानी के जरिए से दीन का, इस्लाम का इत्माम किया गया, यानी दीन इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशखबरी दी गई। जी मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज यौम अरफा के रोज़ आप अरफात के मैदान में मौजूद हैं और वहाँ से हमें गाइड कर रहे हैं कि हज की अहमियत और फ़जीलत क्या है। जिस तरह आपने भी फरमाया कि अल हज्जु अरफा, यानी हज तो अरफा का नाम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस है, और बिल्कुल ऐसा ही है कि आज चूँकि यौम अरफा है, हज का रुकन आज़म है, वक़ूफ़ अरफा इस वक्त अदा किया जा रहा है। ज़वाल से ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त यहाँ पर गुजारना होता है हुज्जाज इकराम को मैदान अरफात में। आज के रोज़ तमाम इम्तियाज़ात के बंधन और जंजीरें तोड़ दी जाती हैं। चुनाचे बादशाह, फ़कीर, वज़ीर व अमीर, दौलतमंद और हाजतमंद, साहिब व बंदा, मोहताज और गनी का कोई आज इम्तियाज़ नहीं है। सब अल्लाह के बंदे एक ही हैं और यहाँ पर वो मौजूद हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। चुनाचे वो शायर ने भी बड़ा खूब कहा है कि बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो आज सभी एक ही नज़र आ रहे हैं और मकसद सबका यही है कि अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए। जो गुनाह हो चुके हैं ज़िंदगी में उनसे उनके ऊपर इस्तग़फ़ार की जाए, उनकी मुआफ़ी मांगी जाए, और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में ना गुनाह करने की तौफ़ीक़ भी अल्लाह ताला से ही वो तलब कर रहे हैं। और एक और ही हमारे साथी बहुत ही खुशनसीब जनाब आमिर इकबाल साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं मुल्तान के, वो भी यहाँ पर इस वक्त मैदान अरफा में मौजूद हैं और उन खुशनसीब लोगों में मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने चुना है और अपनी इस अजीम इबादत के लिए आज मैदान अरफा में उनको जमा किया। आमिर भाई, एक तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, मैदान अरफात से आप हमारे साथ मौजूद हैं, और ये बड़ी अहम ये कहा जा सकता है कि इस वक्त घड़ियां हैं जो आप इस वक्त मैदान अरफात में गुजार रहे हैं। गो के अल्फाज के बंधन में तो ये जज्बात नहीं बन सकते कि आप इस वक्त वहाँ पर क्या देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को, देखने वालों को बताएं कि इस वक्त क्या आपके जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, क्या इबादत की जा रही हैं वहाँ पर मैदान अरफा में, क्या माहौल है? जी बिल्कुल, बतौर मुसलमान सबसे बड़ा दिन है और मैं इस दिन का आज हिस्सा हूँ। मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ, मैदान अरफात जिसको कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर फर्जंदान इस्लाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लाखों की तादाद मौजूद है, और मैं इस वक्त जबले रहमत पर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह के हुजूर मुसलमान पेश हुए हैं, वो अपने तरीके से इबादत कर रहे हैं, वो अल्लाह की सना पेश कर रहे हैं। और आपसे थोड़ी देर बाद इमाम काबा हज का खुतबा अदा करेंगे, जिसको तकरीबन उर्दू, अंग्रेजी और पश्तो समेत 36 जबानों में नशर किया जाएगा। पूरी दुनिया से फर्जंदान इस्लाम मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कोई अपने गुनाहों मांग रहा है, कोई अपने मरहूम बुजुर्गों की बख्शिश मांग रहा है, कोई अपने औलाद की नेक नसीब मांग रहा है, कोई अपने लिए आखिरत की भलाई मांग रहा है। यहाँ पर हर बंदा अल्लाह के सामने अपनी झोली फैला के बैठा है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, रहमत का तलबगार है। मैदान में जो मकाम अरफा है, वहाँ पर जो कैंप है, वहाँ पर गुज़श्ता शब से मिन्ना से हुज्जाज किराम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आना शुरू हो चुकी थी और आज भी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है। उसके बाद ये जबले रहमत का भी वहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी दुआएं कर रहे हैं, और इसके बाद इमाम काबा का खुतबा सुना जाएगा, जिसके बाद बाकी अरकान को मुकम्मल किया जाएगा। मैदान अरफात में इस वक्त अल्लाह का जिक्र बड़े जोरों शोर किया जा रहा है। मुसलमान यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, सब अल्लाह के हजूर पेश हैं। महमूद याद काले को जिस तरह कहा गया था, गोरे पर गोरे को काले पर, अजमी को अरबी पर, अजमी को
में खड़े हैं। और इंतजाम की अगर बात की जाए तो वही मैं आ रहा था आमिर भाई, मैं इसी तरफ आ रहा था। एक तो यकीनन आप जो इस वक्त दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह की किब्रियाई बयान कर रहे हैं, उसकी हम्दो सना बयान कर रहे हैं, अपने गुनाहों के ऊपर इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, हर इंसान को निदामत है। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि थोड़ा सा इंतज़ामात के बारे में बताइए, चूँकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस दफ़ा बताइए कि गर्मी कितनी है और इंतज़ामात यहाँ पर कैसे किए गए हैं आमिर भाई? गर्मी फौज वो 44 बताई जा रही है, जबकि इंतजामात जो हैं, जो हम आए हैं तब से लेकर एक खसूसी इंतजामात किए गए हैं। 2 दिन पहले वजारत हज और उम्रा के जनरल मैनेजर मरवान अल-ज़ुहैरी ने हज कंट्रोल रूम में और मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया को हमें दौरा भी कराया था। तो उनका यही कहना था कि ये जो हुजाज किराम है ये अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के मेहमानों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। एयरपोर्ट से सरकारी ट्रांसपोर्ट पर उनको लिया गया, उनके होटलों तक छोड़ा गया, होटलों से मिन्ना लाया गया, अरफात लाया गया। यहाँ पर हर जो कैंप लगाया गया वहाँ पर एयर कंडीशन वहाँ पर मौजूद हैं, वजू खाने बनाए गए हैं, गुसल खाने बनाए गए हैं, खाने के लिए बड़ा बेहतरीन इंतजाम किया गया है, सफाई का बेहतरीन इंतजाम है। हज में जो हुजाज किराम पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से अपने इंतजाम करके आते हैं, उन्होंने मकाम अरफात या इस गर्मी का मुकाबला करने के लिए, तो यहाँ पर भी वो इंतजाम मौजूद हैं। लोगों को बोतलें दी जा रही हैं। अभी जो हम गए हैं जबल रहमा पर, तो वहाँ पर रास्ते में लोग पानी लेके खड़े हैं, आप आमिर इकबाल साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। और मैं बार बार आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और आप यकीनन हम सब में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं